and I welcome you all to Echo with JP. This is the second lecture of our fourth chapter, which is journal. In previous chapters, in previous videos we have covered chapters like terminologies of accounting, dual effects of transaction, and types of account. We have also learned about what is goods and services tax. This is the fourth chapter, which is journal. In the previous video of this chapter, we have learned the topics of journal book. What is journal book? I have told you that journal is the fundamental book. What is journal? From which word journal is derived? And we have looked after the specimen of journal. Now, today we are going to practice a question of making a journal book. The question is like, record the following transaction in the journal books of Priya. So let me first make the specimen. Here goes the date, here goes particular, sorry for the inconvenience. Particulars. Here goes the LF number, the ledger folio number, and here goes debit in rupees and credit in rupees. I am not writing the whole word particular here because there is some issue coming over right there. Now, the book is of year 2014. Month is of March. This is the information which is provided to us. The first transaction says that goods of 5,000 is purchased on cash. It says goods of, I'm just writing it for example, goods of rupees 5,000 purchased on cash. Purchased on cash. Okay, this is the transaction. If you want to write it, you can write it. Okay, now we are going to mention okay, the year was 2014 March, and the first transaction was that goods of rupees 5,000 is purchased on cash and the date is 1st of March. Now what will be the dual effect of it? The dual effect of it will be, now what is coming, goods are coming into a business, we are purchasing the good. So what we'll do, we have learned in the dual effects of transaction, the goods comes in, goods assets comes in, then purchase account debit. Okay, purchase account debit, and purchase account debit, and what is the amount is of 5,000 rupees. Okay, to कैश अकाउंट. क्या हो रहा है, परचेस, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और पैसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, कैश अकाउंट, उस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे. Now, the second transaction is on 4th date, 4th of March. It says that goods of 8,000 is purchased from Nandan on credit. The date is 4th of March. It says that goods of rupees 8,000 are purchased from Nandan. Nandan is a live person. He will be classified into personal account. जो नंदन है वो एक लाइव पर्सन है, जिंदा पर्सन है, उसको हम पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे. अब क्या हो रहा है, इस केस में भी हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट
डेबिट। अब क्या है, हमने क्रेडिट पे नंदन से गुड्स परचेज किए, तो हमको नंदन को मेंशन करना पड़ेगा हमारी बुक में, ताकि हमको पता चले कि इसको हमको पैसे देने बाकी है। समझ रहे हो? तो क्या लिखेंगे हम, टू नंदन अकाउंट, कितना है, जितना डेबिट हुआ उतना उसके अपोजिट कॉलम में हम करेंगे उसको क्रेडिट। ओके। थर्ड है हमारा गुड्स ऑफ ₹4000 इज सोल्ड टू जिग्ना। अभी हमने परचेज किया, होगा आ रहा है सोल्ड। ये ट्रांजैक्शन हुआ है 7 मार्च को। ओके। तो क्या हो रहा है, गुड्स को हमने सेल किया, तो क्या हो रहा है, गुड्स असेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। और बेनिफिट रिसीवर कौन है इस केस में, यहाँ पे गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू जिग्ना, यहाँ पे कैश ये चेक मेंशन नहीं किया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये कैश है या क्रेडिट। इसके अंदर जिग्ना का नाम लिखा हुआ है, और हम अपने बुक में तभी नाम लिखते हैं जब हमको उसको पैसे देने, मतलब अगर रिसीवेबल हो या पेएबल हो। तो हमने क्रेडिट, इसका मतलब ये होगा कि हमने जिग्ना को क्रेडिट पे पैसे दिए हैं, क्योंकि कैश या चेक वर्ड मेंशन नहीं है यहाँ पे, और जिग्ना का नाम है ट्रांजेक्शन में, तो मतलब ये हो गया कि हमने जिग्ना को क्रेडिट पे गुड्स दिए हैं। अभी गुड्स कितने हैं, 4000 रुपये के गुड्स हैं, हमने जिग्ना को दिए। अभी इसके अंदर जिग्ना बेनिफिट रिसीवर है, तो बेनिफिट रिसीवर क्या होता है, डेबिट पर्सनल अकाउंट में आता है। तो जिग्ना अकाउंट डेबिट कितना, 4000 रुपीज़। ओके। टू क्या हो रहा है, गुड्स या असेट, इसमें क्या है, गुड्स है, तो गुड्स जा रहे तो हम क्या करते हैं, सेल किया हमने, तो सेल्स अकाउंट कितना है, 4000। ओके। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, वापस एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट इन रुपीज़ एंड क्रेडिट इन रुपीज़। ओके। वो थोड़ा हैंड राइटिंग को ध्यान में मत रखना, वो थोड़ा हो जाता है। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेज दैट कमीशन रिसीव्ड ऑफ 200 रुपीज़। अभी तक गुड्स के बारे में था, परचेज किया, सेल किया, अभी आ गया कमीशन। कमीशन हमारे लिए क्या है, बताओ। कमीशन हमारे लिए इनकम है, बरोबर है ना। तो इनकम हम क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकम आता है नॉमिनल अकाउंट में। हमने पढ़ रखा है कि पहले आता है बेनिफिट रिसीवर, गुड्स असेट्स कम्स इन, देन एक्सपेंस एंड लॉस, देन देयर इज वन credit effect. In credit effect benefit giver person, goods asset goes out, and third is income. नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो कमीशन रिसीव क्या है, हमारी इनकम है। और क्या आ रहा है, इससे हमारे पास कैश आ रहा है, और ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है 7 मार्च को, वो कंटिन्यूएशन में ही है, आप समझ लेना। 12th, माय बैड, जस्ट सेकेंड। 12 मार्च को ये किया गया है, 12 मार्च 2014 को, कि कमीशन रिसीव। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, कैश कम्स इनटू बिजनेस, कैश इज व्हाट, कैश इज करंट असेट ऑफ बिजनेस, सो असेट कम्स इन, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना है कैश, कितना आया, कमीशन कितने का रिसीव हुआ हमको, ₹200 का। टू क्या हो रहा है, कमीशन अकाउंट जो है हमारी इनकम है, कमीशन रिसीव हुआ, तो कमीशन अकाउंट, कमीशन का स्पेलिंग क्या होता है, हाँ, कमीशन टू कमीशन अकाउंट, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़ क्रेडिट, जितना वहाँ पे था। अब हमारे क्वेश्चन का सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन है वेजिस एक्सपेंस पेड 150 रुपीज़। ये किया गया है 15 मार्च 2014 को। अभी क्या है, हमने लिखा है वेजिस पेड ऑफ, वेजिस एक्सपेंस पेड ऑफ रुपीज़
₹150। इस केस में क्या हो रहा है, वेजिस पेड वो क्या है, हमारी एक्सपेंस है। वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ कि वेजिस पेड एक्सपेंस, तो आपको कुछ समझना ही नहीं है। वेजिस पेड एक्सपेंस किस में आता है, डेबिट इफेक्ट थर्ड कॉलम, विच इज़ नॉमिनल अकाउंट की थर्ड कॉलम। डेबिट इफेक्ट में क्या कहती है कि डेबिट करना है उस अकाउंट को जो एक्सपेंस एंड लॉस है। नॉमिनल अकाउंट हमने पढ़ रखा है उसका रूल, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो वेज क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, वेजिस अकाउंट डेबिट। कितने की वेज पे की हमने, ₹150। टू वो क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ओके सॉरी, एक्सपेंस तो वेजिस हो गई, और क्या हो रहा है, इससे कैश जा रहा है हमारे, क्या हो रहा है, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो क्या हो रहा, कैश अकाउंट क्रेडिट हम नहीं लिखते हैं यूजुअली यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है कि रूल ही है, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। पर क्यों टाइम वेस्ट करना है क्रेडिट लिखते, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट तो आप लिखने ही वाले हो जो अमाउंट है वो। हाँ, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये कितना है, ₹150। ये जो हमने प्रिपेयर किया इसको बोलते हैं जर्नल बुक। हमने ट्रांजेक्शन थी उस महीने की, किसकी, प्रिया की। तो उसने क्या ट्रांजेक्शन्स किए पूरे महीने में, वो हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया। इसके बाद ये करने के बाद क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लास्ट में हम करते हैं टोटल। अब टोटल कितना हो रहा है देखो, 5000, 8000, 4000, 5000 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 150, इसका टोटल हो जाता है 17,350 और जितना डेबिट में लिखेंगे उतना ही हम क्रेडिट में लिखेंगे, तो क्या हो गया, 17,350 सिंपल। ये होती है जर्नल बुक। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रांजेक्शन लिख दूंगा, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे जर्नल बुक बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट इज़ इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्पेंडिंग योर valuable time. We'll meet in the next video with new interesting topics, and stay connected by subscribing and liking my channel. Thank you.